गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार और आपका स्वागत है। वंस मोर आई वेलकम यू टू माय चैनल दैट इज़ पारिजात सर क्लासेस एंड टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ यू द डिस्कशन ऑफ फिज़िक्स का जो क्लास 12 का जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग दिस वीडियो एंड इसका एक ही कारण है कि कुछ वीडियोस में थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लग गया है। सो नाउ इट इज़ रेडी एंड आई होप दैट यू विल बी गेटिंग द वीडियोस इन अ वेरी रेगुलर इंटरवल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12 के फिज़िक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कूलम्स लॉ, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट आई होप दिस वीडियो विच आई एम गिविंग टू यू इट इज़ अ वेरी कॉन्क्रीट एब्सोल्यूटली। इसका जो थ्योरी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, दिस इज एब्सोल्यूटली गवर्निंग द टोटल सिलेबस ऑफ क्लास 12, चाहे वो आईएससी बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ भी हो, आप सब के लिए, आप आईआईटी, जेईई मेंस, कुछ भी आप इसको ले लीजिए। यू कैन completely go through this whatever theory I am showing to you. You can rely on this and you can go through on this and it will be covered up fully in my classes. ठीक है, तो चलिए without wasting any time let us start and discuss the first chapter that is electrostatics का Coulomb's law. Electrostatics Coulomb's law, let us start and discuss. So as you can see that we are discussing electrostatics Coulomb's law. So this is the first chapter, this is the first chapter of physics class 12 and I will be discussing this chapter with you in a very easy format. So before beginning I would like to again request all of you कि please go through my channel Parijat Sir classes. It is Parijat Sir classes, or please subscribe, share and like my videos. ठीक है, तो चलिए without wasting any time let's move on to the chapter. So as you can see the chapter begins with the first topic that is quantization of electric charge. Quantization of electric charge. What is this? तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, all free charges are integral multiples of a basic unit of electron or proton. इसका मतलब क्या है कि if you take the charge Q is equal to n into E, where n is क्या है, number of electrons or protons and E is the charge 1.6 10 to the power minus 19 coulombs. ये है E का इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये क्या बता रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बता रहा है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। देखिए ये n क्या हो सकता है, 1 2 3, सो इट कैनॉट बी इन डेसिमल्स, ये कभी भी डेसिमल्स में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। सो इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द charge of an electron, that is called quantization of charge. ठीक है, for example here first question is what is the value of charge on the body which carries 20 excess electrons. 20 excess electron, तो देखिए यहाँ पे क्या है, Q is equal to n into E, तो n के बदले हमने 20 यहाँ पुट कर दिया and the value of the E is minus 1.6 10 to the power minus 19, minus 1.6 10 to the power minus 19 and which is coming minus 3.2. ये तो चार्ज कितना आ गया, minus 3.2 10 to the power minus 90 minus 18 coulombs. So that is our charge, total charge कितना आ गया, minus 3.2 into 10 to the power minus 18 coulombs. This is the charge. So as we know that we have got how many electrons, 20 electrons, and number of electrons cannot be in fractions. So we have got here the number of electrons is coming 20 electrons
therefore the total charge is minus 3.2 10 to the power minus 18 coulombs, right? Next topic is conservation of charges. What is this? जैसे हम लोग ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग ने एनर्जी पढ़ा था, टोटल एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसी तरह यहां भी है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मीन्स यू कैनॉट क्रिएट charges or you cannot destroy charges. That is called conservation of charges. Total charges in the system will always be constant. Now we are coming into a very important topic that is called Coulomb's law. Coulomb's law क्या बोलता है कि if there are two charges, मैं यहां दिखा देता हूं, if there are two charges Q1 and Q2 and separated by a distance r in air medium, so what is the force between them? The force between the two charges is 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by r square. 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by r square. This is the force which is between the two charges Q1 and Q2. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the force of interaction between two point charges is proportional to the product of the charges. First तो ये है proportional to the product of the charges, that means F proportional to Q1 and Q2, product of the charges. Second क्या है, F is inversely proportional to 1 by r square, square of the distance between them. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, तो हमको क्या मिल रहा है, F is proportional to Q1 Q2 by r square. और इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम उठा दें, तो हम क्या लिखेंगे, we have to add one constant which is 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by r square. ये मेरा constant है, this is my constant, and here this is called epsilon O. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं epsilon O. This is called epsilon O. और इस पूरे इस कांस्टेंट को हम लोग कभी कभी k भी बोलते हैं, पूरे कांस्टेंट को k भी बोलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और इस पूरे k का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, इट विल कम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और वो किस में होगा, वैक्यूम में होगा। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस k which is a constant is calculated as 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. ठीक है। Now here we are taking, this is actually epsilon O, we are taking this and this is epsilon O. इसको क्या बोलते हैं, absolute permittivity of free space. Free space means vacuum. ठीक है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, याद रखिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज दिस, ओके, m minus 1 l minus 3 t to the power 4 a to the power 2. a here is ampere. a क्या है, a is the current. ठीक है। और इस एप्सिलॉन o, ये जो एप्सिलॉन o है, इसका वैल्यू इन वैक्यूम, ठीक है, इस वैल्यू इज 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को याद रखिए, दिस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। अगर आप दो चार्जेस को एयर में रखेंगे, इफ यू कीप बोथ द चार्जेस इन एयर, तो याद रखिए ये जो एयर में रखेंगे, देन यहाँ जो k का वैल्यू आता है, इट इज 1 by 4 pi epsilon O. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस epsilon O को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द
absolute permittivity of free space. It is also called absolute permittivity of free space. और उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू इन वैक्यूम इज 8.85 10 to the power minus 12. Now this is a very important thing, याद रखिए. If both charges are positive or negative, याद रखिए, both charges are positive or negative, F is directed outwards. इसका मतलब क्या है? For example, this is minus Q and this is also minus Q. तो इनका जो force होगा between them, it will be directed out. It will be directed out. Or if it is positive and positive, it will also be directed out. इनके बीच में जो force होगा, इनके बीच में जो force होगा, they will be directed out. And if both the charges are of opposite sign, suppose एक Q है और एक minus Q है, the force of attraction will be directed towards each other, in. They will be directed towards each other. ये याद रखिए. If the charges are of opposite nature, the force of attraction will be directed towards each other. And if the force, because it is a attractive force, this is attractive force and this is a repulsive force. Clear? तो चलिए देखते हैं क्या है. How is the force of two charges affected when each charge is doubled and the distance between them is also doubled? क्या बोल रहे हैं देखिए. Initially, what was the force? 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by R square. मतलब जब Q1 and Q2 are kept at a distance R. Now they are telling F final, when the value of Q1 is doubled and value of Q2 is also doubled and the distance is also doubled. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. The value of charge doubled, distance charge मतलब Q1 Q2 are doubled and distance मतलब R is also doubled. तब क्या होगा? तब देखिए क्या होगा. 1 by 4 pi epsilon O, ये क्या हो जाएगा? 2Q1 into 2Q2 और R क्या होगा? 2R whole square. Means क्या हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon O, this is 4 Q1 Q2 by 4 R square, and this I can calculate, and 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by R square, which is the F initial. मतलब उनमें force final will remain as force initial. Force final and force initial, they will remain as same. That means there will be no change in the force if the charges are doubled and the distance between them is also doubled. ठीक है. Okay. Next is, देखिए, relative permittivity. See this term, relative permittivity. I told you that both the charges are placed in vacuum. मैंने कहा both the charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 are kept at a distance R but in vacuum. ठीक है. तो वैक्यूम में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी. एब्सोल्यूट परमिटिविटी. But if it is placed in any other medium, suppose you are placing it in water, इन दोनों को आपने water में रख दिया, then there is a term called relative permittivity. Relative permittivity, इसका मतलब ये कैसे आएगा? What is the relative permittivity? Means it is the force in vacuum
टू द फोर्स इन द मीडियम। तो वो क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम। तो इसका देखिए कैसे आ रहा है, फोर्स इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q1 Q2 by R square, एंड फोर्स इन द मीडियम ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ into the permittivity of that medium, Q1 Q2 by R square. So this term is cut, this term is cut, so it is what, तो ये क्या है, this is 1 by this, so that means, और ऊपर क्या है, this is this, that means ये देखिए, so this is called the relative permittivity, when it means when the force in vacuum is the ratio of the force in vacuum to the force in the medium, इसी को बोलते हैं द रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए मीडियम का फोर्स क्या आ रहा है, मीडियम का फोर्स आ रहा है फोर्स इन वैक्यूम, इट इज द फोर्स मीडियम, व्हाट इज द फोर्स इन द मीडियम, फोर्स इन द मीडियम इज द फोर्स इन वैक्यूम बाय the permittivity of the medium. That means force in medium is inversely proportional to the permittivity of the medium. Means जितना permittivity of the medium आपका बढ़ेगा, if you are keeping it in a medium, suppose water or alcohol or any other medium जिसका permittivity is greater than air, means उसमें force of attraction between the two charges will decrease, the force will decrease, ठीक है, only the force is maximum, the force, the more dense medium you choose, so तो उसका permittivity ज़्यादा होगा, so force in that medium will decrease, force in the medium between the two charges will decrease. Now comes superposition principle. तो superposition principle what is that? देखिए they are telling the superposition principle means, suppose you have in the medium there are charges like Q1, Q2, Q3, Q4 और इसका एक आपने टेस्ट चार्ज ले लिया है, तो द टोटल फोर्स विल बी द फोर्स बिटवीन दिस, द फोर्स बिटवीन दिस, द फोर्स बिटवीन दिस, द फोर्स बिटवीन दिस, द टोटल फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस विल बी सम्ड अप एंड दैट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब आप एक पर्टिकुलर किसी चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालना चाहें तो दैट टोटल नेट फोर्स विल बी द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द अदर चार्जेस। ओके, सो यू कैन सी हियर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज दैट टोटल फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज क्या होगा, फोर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस आप निकाल के ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, force due to this charge, force due to this pair and force due to this pair is the net force on this charge. So let's see here, there is a sum. So the sum says so there are two charges, one is that is 2 into 10 to the power minus 8 coulombs and this is again 2 into 10 to the power minus 8 coulombs and they are joined by a string of length 1 meter. तो question क्या है? Now watch here, these two charges are positive charges. ये क्या charges हैं? This is a positive charge, this is a positive charge. तो मैंने कहा था if there is a positive charge, the force
will be outwards. The force will be outwards. तो what is the force acting between them? जो force इन दोनों के बीच में काम करेगा, that is the tension. वही तो tension होगा. The force which will act between the two charges, the force which is going to act between the two charges, ये एक चार्ज यहाँ पे हमने बिठा दिया, यहाँ पे एक चार्ज हमने बिठा दिया. So the force which will act between the two charges is the tension. तो चलिए फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. F इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon O. It is Q1 Q2 by R square. तो 1 by 4 pi epsilon O का वैल्यू मैंने बताया था 9 into 10 to the power 9. एंड Q1 Q2, यह Q1 है, दिस इज Q1, दिस इज Q2. सो ये क्या होगा 2 into 10 to the power -8 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर. इट्स R स्क्वायर 1 होगा. तो दैट मीन्स इट इज 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power -16 by 1. तो ये कितना होगा 36 into 10 to the power -7 Newton. This is the force acting between the two charges. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. So next question says the electrostatic force of repulsion between two positive charges is 3.7. तो देखिए यहाँ पे फोर्स दे दिया है कि there are two charges Q and Q, both are positive and they are separated by a distance 5 angstrom, and the repulsive force is 3.7 into 10 to the power -9 Newton. तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स n. तो लेट्स सी द फोर्स बिटवीन देम. वी नो 1 by 4 pi epsilon O Q1 Q2 by R square. तो ये कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन 3.7 into 10 to the power -9 इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon O का वैल्यू क्या है 9 into 10 to the power 9 इंटू Q1 Q2 क्या है, दोनों ही Q है, सो Q स्क्वायर बाई 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 5 into 10 to the power -10 मीटर इसका स्क्वायर. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट. So 3.7 into 10 to the power -9 के साथ दिस इज 25 into 10 to the power -20, ये इधर चला जाएगा. 25 into 10 to the power -20 और ये नीचे आएगा 9 into 10 to the power 9 which is coming Q square. ठीक है. So let's see the calculations. How much is coming. तो देखिए -9 ये ऊपर जाएगा, सो इट इज कमिंग Q स्क्वायर कितना आ रहा है 3.7 into 25 by 9 into 10 to the power -9, ये 9 ऊपर जाएगा -9 -18, सो -38. तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज 3.7 into 25 by 9 into 10 to the power -38.
सो वैल्यू ऑफ Q विल बी, देखिए 25 तो 5 हो जाएगा, 9 विल बी 3 एंड 3.7 इज रफली 4, तो रफली 4 मतलब है 1 पॉइंट समथिंग पकड़ लेते हैं, 1 पॉइंट ये 8 के करीब ऐसा कुछ आ जाएगा, इनटू 10 टू द पावर माइनस 38, ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 19 हो जाएगा. सो Q इज कमिंग हाउ मच, दिस इज कमिंग 0.6, तो दिस इज कमिंग 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. बट हमको तो n पूछा है, सो नाउ वी नो Q इक्वल टू n इंटू E, सो n विल बी Q बाई E. सो n क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाई, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कट गया. सो 3 बाई 1.6 कितना आएगा, रफली 2 आएगा. सो दैट मीन्स देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. How many electrons are missing? So it will be 2 electrons are missing. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा. मेरा एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे बहुत ही कॉन्क्रीट एक नोट्स बना के मैं आपके यहाँ पे लाऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा. वी एम ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू द एब्सोल्यूट कॉन्क्रीट नोट्स विच इज़ गोइंग टू कम फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. आप इसको पढ़ेंगे तो ये टोटल कवरेज आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 दैट इज कूलॉम्स लॉ में टोटल कवरेज मैं आपको दे रहा हूँ विथ सम गुड क्वेश्चंस. तो फॉलो करते रहिए, प्लीज़ शेयर करते रहिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पारिजात सर क्लासेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार दैट इज वेयर इज द थिंग. ओके, तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A charge Q is placed at the center of the line joining the two equal charges. देखिए यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक और चार्ज है Q. They are telling that इसके सेंटर में मैंने एक चार्ज लिया है Q. तो they are telling अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बताइए कि इस चार्ज का जो वैल्यू है वो इतना आएगा. तो बताइए इस चार्ज का जो वैल्यू है इट विल कम दिस. 2 चार्जेस Q एंड Q आर प्लेस्ड. उनके सेंटर में एक चार्ज को प्लेस किया गया है Q. नाउ दे आर टेलिंग दिस होल सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम अगर इस चार्ज Q का वैल्यू ये आए. तो लेट्स सी. चलिए इसका डिस्टेंस हम लोग x दे देते हैं, इसका भी डिस्टेंस x देते हैं. ओके, सो नाउ वॉच वन थिंग. देखिए फॉर इक्विलिब्रियम याद रखिए, फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स, मैं इसका नाम दे देता हूं A B और यहां पे नाम देता हूं C. चलिए, तो फोर्स ड्यू टू ए बी प्लस फोर्स ड्यू टू बी सी, ये जीरो होना चाहिए. बिकॉज अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, किसी भी चार्ज में नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा. किसी भी चार्ज में नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एफ ए बी का फोर्स निकाल लेते हैं. तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ क्यू बाई 2x का होल स्क्वायर विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ क्यू बाई
4x²। नेक्स्ट इज हम लोग फोर्स BC का निकालते हैं। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन O। इट इज थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, दिस विल नॉट बी देयर। इसके बदले क्या आएगा Q आएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग टू सेम चार्जेस, सो ये Q² आ जाएगा, Q² एंड दिस इज Q²। ओके, एंड दिस इज बिटवीन B एंड C, तो इट विल बी QQ/x², राइट। नाउ वी नो द टोटल फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन O Q²/4x² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन O QQ/x², ये 0 होना चाहिए। ओके, देयरफॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन O Q²/4x² इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन O, ये क्या होगा QQ/x²। तो देखिए ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, x² पोर्शन भी कट जाएगा, एक Q भी कट जाएगा, तो व्हाट रिमेन्स, दैट इज इधर बचा आपका Q/4 और इधर बचा आपका माइनस Q। देयरफॉर तो ये देखिए आ गया Q इक्वल टू माइनस Q/4। तो इसका मतलब है कि अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फिर द चार्ज एट द सेंटर, अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फिर ये चार्ज एट द सेंटर शुड बी दिस वैल्यू, तभी जाके वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ए पॉजिटिव चार्ज Q आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज Q इज हेल्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो ये बोल रहे हैं कि बताइए ये Q का पोजीशन कहां पे रखें एंड Q का पोजीशन, देखिए Q का पोजीशन कहां रखें एंड Q का वैल्यू क्या हो, तो लेट्स सी Q का पोजीशन क्या रखें और Q का वैल्यू क्या हो। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा इक्विलिब्रियम में अगर हो, चलिए इसको A B और इसको C पकड़ते हैं एंड लेट दिस बी X एंड लेट दिस बी A, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है कि इक्विलिब्रियम के लिए बीच में रखो, तो वेयर शुड आई कीप, एट व्हाट पोजीशन, क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन शुड आई कीप एंड Q का वैल्यू क्या हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम के लिए मैंने कहा था कि FAB प्लस FBC शुड बी 0, ठीक है। चलिए तो FAB क्या है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन O माइनस E इंटू माइनस E बाई x प्लस A होल स्क्वायर, ये है, प्लस BC का फोर्स क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन O, इट इज माइनस E इंटू Q बाई A स्क्वायर शुड बी 0। तो चलिए तो यहां पे क्या होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन O, ये
ई स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन ओ माइनस क्यू ई बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कट द थिंग्स, व्हाट इज गोइंग टू कट। जो जो कटेगा हम उसको पहले काट देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल कट, दिस विल कट। ठीक है, एक यहाँ से ई कट हो जाएगा, एक ई कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ई बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई ए स्क्वायर, ये हो रहा है। तो लेट्स कैलकुलेट इट। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट इट। देयरफॉर क्यू इक्वल टू ई ए स्क्वायर बाई, यहां पे मुझे x निकालना है। ओके, सो चलिए इसको भूल जाते हैं, इसको हटाते हैं पहले, बिकॉज आई हैव टू फाइंड x। चलिए, तो लेट्स सी, तो यू हैव टू फाइंड x। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सो इट इज ई ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे, देखिए, इसको मैं रूट ई ए का होल स्क्वायर लिख दूं इक्वल टू ये रूट क्यू इंटू एक्स प्लस ए का मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूं, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। देयरफॉर रूट ई ए इज इक्वल टू रूट क्यू एक्स प्लस ए। देयरफॉर रूट ई ए माइनस रूट क्यू ए इज इक्वल टू रूट क्यू एक्स। तो यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, रूट ई माइनस रूट क्यू एक्स। देयरफॉर x इक्वल टू a रूट ई बाई रूट क्यू। ये मेरा आंसर है। तो इट इज द चार्ज इज केप्ट एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज केप्ट एट दिस डिस्टेंस। ये जो Q जो चार्ज है, इसको कितने डिस्टेंस पे मैंने रखा, दिस डिस्टेंस, देन ओनली इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये तभी आपका क्या आएगा, पूरा इक्विलिब्रियम में आ सकता है। दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस विल बिकम जीरो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। So see, this is a very good question. This is a very very interesting and good question. इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस 2 माइक्रोफैराड। तो देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोफैराड, इंटरैक्ट विद अ थर्ड 2 इक्वल पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैराड और है, और यहाँ पे हमने एक 3 माइक्रोफैराड भी रखा है। तो इट इज सिचुएटेड लाइक दिस। देखिए ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर 3 मीटर है। तो दे आर टेलिंग कैलकुलेट द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोफैराड, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोफैराड। ये जो चार्ज है इसमें नेट फोर्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो हम पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला। तो दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, अगर ये 3 है और ये 4 है तो दिस विल कम 5 मीटर, दिस विल कम 5 मीटर। ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट ये एयर में ही है, कुछ नहीं बोला है, मतलब एयर में है। दैट मीन्स हम पहले एफ ए पी ये फोर्स निकालते हैं।
तो ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ 2 इंटू 10⁻⁻6। देखो माइक्रोफराड का मतलब क्या है, 2 माइक्रोफराड मतलब 2 इंटू माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और यहाँ क्या है 3 इंटू 10⁻⁻6। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ Q1 Q2 बाई डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, दैट इज 5, तो 5 का स्क्वायर, सो विच इज कमिंग हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ। तो देखिए 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻12 बाई 25 न्यूटन। तो इसका डायरेक्शन देखिए क्या है, ये रहा FAP, इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे आ रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, करेक्ट। इसका डायरेक्शन अगर आपका ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब देखिए अगर इस FAP को हम रिजॉल्व करें तो क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है इसमें होगा FAP cos थीटा, और इधर आएगा आपका FAP sin थीटा। सिमिलरली देखिए अगर हम ये वाला पेन ले लेते हैं, अगर हम FBP निकालें तो देखिए BP का डायरेक्शन ये रहा, दिस इज BP डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैंने कहा था पॉजिटिव विल बी ऑलवेज अवे। तो क्या होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ, इसका आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ। तो इनका दोनों चार्जेस क्या क्या है, एक ही चार्ज है, फिर देखिए एक ही वैल्यूज है, तो विच इज 2 इंटू 10⁻⁻6 के साथ 3 इंटू 10⁻⁻6 बाई, इसका भी डिस्टेंस 5 है देखिए, तो 5 स्क्वायर, एंड द वैल्यू विल कम सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ विच इज कमिंग 6 इंटू 10⁻⁻12 बाई 25 न्यूटन। तो इसका वैल्यू भी वही है। तो इधर देखिए एक और फोर्स आएगा, इधर इसका भी कॉस कंपोनेंट इधर ही आएगा, कॉस कंपोनेंट इधर आएगा और साइन कंपोनेंट इधर आएगा। तो इधर आएगा आपका FBP साइन थीटा, और इधर आएगा आपका FBP कॉस थीटा। तो अब यहां पे देखिए ये जो FBP साइन थीटा और FAP साइन थीटा, ये जो दो वैल्यूज हैं, यहां पे देखिए डिस्टेंस भी दोनों का वैल्यूज तो सेम है ना, FAP और FBP का वैल्यू तो सेम ही है, तो उनका साइन कंपोनेंट भी सेम ही आएगा, मतलब ये दो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। ये जो आप वैल्यूज देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो नेट वैल्यू क्या होगा, नेट वैल्यू होगा आपका, नेट फोर्स क्या होगा, कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, FAP कॉस थीटा प्लस FBP कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हुआ, FAP क्या हो गया, FAP आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ, देखिए दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो 6, तो बेसिकली इसका AP cos थीटा FBP cos थीटा दोनों सेम ही है, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻12 बाई 25, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन में कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, उसके आगे एक 2 इंटू है, फिर आपका आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻12 बाई 25, मतलब कितना आ रहा है 9 2 18, 18
12 9 ज़ा 108, 108 इंटू 10 टू द पावर, ये +9 है, -12 है, तो -3/25, तो ये कितना आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन. सो दिस इज द net force. This is the net force which will act on this 3 microcoulomb charge which is placed here. This is the net force. ठीक है, I think you understood. तो देखिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका कंटिन्यूएशंस और मोर वीडियोस और जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के वीडियोस आने चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आई गेट इंस्पायर्ड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट देखिए, लेट्स कम टू दिस पार्ट अगेन. तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. यहाँ पे एक 1 माइक्रोकॉलम दे दिया है, यहाँ पे एक 2 इंटू 10 टू द पावर -8, यहाँ पे एक 10 टू द पावर -8 माइक्रोकॉलम दे दिया है, राइट. दिस इज माइक्रो, हाँ राइट. तो द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट 1 माइक्रोकॉलम फोर्स हेयर. तो देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स विल बी आउटवर्ड. तो F1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन O. Q1 Q2 कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8, -8 है, इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई डिस्टेंस क्या है देखिए, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 का स्क्वायर. तो ये कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इंटू ये कितना हो रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर -14 बाई 0.1, मतलब 1/10 का स्क्वायर अगर करें तो कितना आएगा, 1/10 का स्क्वायर करें तो ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा. दैट मीन्स 9 2 ज़ार 18 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये -5 और थी ये -3, ये आया. सिमिलरली F2 जो फोर्स है, देखिए F2 क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव था इसलिए फोर्स इज अवे, ये नेगेटिव है इसलिए फोर्स इज टूवर्ड्स, फोर्स इज टूवर्ड्स. ध्यान से देखिए, नेगेटिव है इसलिए फोर्स जो है अंदर जाएगा, इसके अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा. ये पॉजिटिव है इसलिए फोर्स बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा, ये ध्यान रखिए. तो व्हाट इज F2? F2 is again 1/4 pi epsilon O. It is -10 to the power -8 माइक्रोकोलम है. सॉरी, ये माइक्रो नहीं है, ये खाली कोलम है, कोलम है, इनटू यहाँ 1 माइक्रोकोलम है तो 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई डिस्टेंस कितना है देखिए, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर. तो ये कितना हुआ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन O कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ये कितना हो रहा है, माइनस में आ रहा है, दिस इज 10 टू द पावर -14 बाई ये कितना हो रहा है, 25 इंटू 10 टू द पावर -4. दिस इज 1/10, 10 सेंटीमीटर मतलब है 10/100, 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर ऊपर जाएगा. ठीक है, सो दिस इज, यहाँ कितना आ रहा है देखिए इसका, सो F2 इज कमिंग -9/25
इंटू 10 टू द पावर, ये कटेगा, दिस इज -10 ऊपर रहेगा, -10 + 9 -1, इसका मतलब है दिस इज, अच्छा इसका एक बार 11 - 3, ठीक है, ओके। सो दिस इज कमिंग 9/25 का मतलब क्या है, 9/25 का मतलब आपका, अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। तो ये ध्यान से देखिए, ये F1 ये F2, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसे काम करेगा, F रिजल्टेंट, तो F रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है, √/F1² + F2², दैट मीन्स F1 कितना है, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है, -9/25 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 इज 324, 18 शायद 324 ही होता है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 6 14 8, हाँ 324 हो रहा है। तो ये कितना होता है, 324 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 9 का स्क्वायर 81/625 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशंस यहाँ पे देखिए, तो दिस इज, अगर मैं इसका इसके वैल्यूज़ को कैलकुलेशंस अगर मैं करूं, तो आई थिंक आई कैन टेक 10 टू द पावर -2 कॉमन इन दोनों में से, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 324 बाई 10 टू द पावर -4, मतलब प्लस 81/625, ये 10 टू द पावर -2 बाहर आ जाएगा 10 टू द पावर -1 होके, और इसका कैलकुलेशंस अगर आप कर लें, 324/10,000 प्लस 81/625, इसका कैलकुलेशंस कर लेंगे, सो दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस रिजल्टेंट न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स, दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स। इसका कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज कमिंग लिटिल बिट टफ कैलकुलेशंस, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सम दे आर टेलिंग कि देयर इज अ ट्रायंगल, इसमें 3 चार्जेस दिया हुआ है, विच इज Q Q Q, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, और इसका लेंथ जो है L L L। देयर इज अ चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड, विच इज एट द सेंट्रॉइड, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ दीज 3 चार्जेस ऑन दिस। तो इसको ध्यान से देखते हैं, देखिए सबसे पहले ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो Q और Q, इन दोनों का जो चार्जेस का फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, F1। B से Q इस चार्ज, इस फोर्स, ये फोर्स कैसे आएगा, F2। और C से जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, F3 आएगा, राइट, F3 ये आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं कि AQ, BQ और CQ, इन दोनों में आपका डिस्टेंस, ये तीनों का डिस्टेंस क्या है। तो देख लीजिए, अगर मैं ये वाला पार्ट ड्रॉ करूं बाहर, अगर मैं ये पार्ट बाहर ड्रॉ कर लूं, तो देखिए ये B है, ये आपका यहाँ पे सपोज करिए O है,
ये C है, ये 120 था तो फिर ये आपका 90 है, ये 30 डिग्री है। अच्छा, तो ये वाला जो है ये L/2 है, मतलब ये पोर्शंस इसका हाफ L/2 है। अगर ये L/2 है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, देखिए हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, हमको क्या चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई विल टेक cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर cos 30 कितना होता है, √3/2। तो BO कितना आ रहा है, BO आपका आ रहा है L/√3, मतलब ये BO L/√3 है। नाउ अगर आप देखें तो F1 ये फोर्स क्या होगा, ये होगा आपका 9 × 10⁹ QQ बाई डिस्टेंस A और Q में क्या है, L/√3, तो L/√3 इसका स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, 9 × 10⁹ इंटू QQ बाई ये 3 ऊपर जाएगा बाई L² means it is coming 27 × 10⁹ QQ बाई L²। तो F2 भी वही आएगा और F3 भी वही आएगा, तीनों का फोर्स एक ही होगा बिकॉज डिस्टेंसेस वैल्यूज आर ऑल सेम। अब यहां पे देखिए, अगर मैं फोर्सेस को ऐसे डिफाइन करूं, ये आपका रहा, ये दिस इज F1, F3, F2। तो अगर मैं कंपोनेंट्स को ले लूं, अगर मैं कंपोनेंट्स ले लूं तो इधर क्या कंपोनेंट्स आएंगे, दिस इज 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो इधर कंपोनेंट्स क्या आएंगे, F3 cos 60 प्लस F2 cos 60। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सम देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4E, तो यहाँ पे आपका प्लस 4E एंड प्लस E are separated by a distance A। ठीक है, where should a third charge be placed? चलिए यहां एक चार्ज को प्लेस करते हैं, that is Q। let a charge be placed at a distance Q, और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं। चलिए this is, let us take it as x, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, a minus x। okay, now they are telling that the net force, the system is an equilibrium। इसका मतलब है अगर मैं इसको a नाम दूं, a, और यहाँ पे b नाम दूं, और यहाँ पे मैं c नाम दे दूं, c, तो I can tell F due to AB, F due to AB should be equal to and opposite to F due to BC। तो चलिए यहाँ पे फोर्स का लगा देते हैं, दैट इज
1/4πε0 4e into q by x square is equal to minus 1/4πε0 q into e by ये आपका a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा, QE कट जाएगा, तो 4/x² इज इक्वल टू, देखिए माइनस इट इज 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इट इज 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस हट जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर कट्स, दैट मीन्स 2/x is equal to 1/a minus x, so 2a minus 2x equal to x, 2a equal to 3x, तो आपका x कितना आ रहा है, दैट इज 2a/3. So we should keep a charge at this point 2a/3 between the two charges 4e and e, so that the charges are in equilibrium. So that where should the third charge, तो थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करें, 2a/3. क्लियर. चलिए नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं. So the next sum says that here there are 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb at the vertices of an equilateral triangle of side 5 centimeter. तो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स बताइए. तो लेट्स सी, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन F1, ये देखिए F1, एंड ये भी पॉजिटिव है, सो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन F2. So now this will be the resultant FR. तो चलिए F1 पहले निकालते हैं. 1/4πε0, दोनों ही चार्ज 2 into 10 to the power minus 6 है, तो स्क्वायर बाई डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, which is coming 4 into 10 to the power minus 12 by 4πε0, और ये हो गया आपका 25 into 10 to the power minus 4. ओके, सो तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 1/4πε0 इज 9 into 10 to the power 9, और ये आपका आएगा 4/25 into 10 to the power, देखिए -12 -4 तो -8 बचा, सो इट इज 36/25 into 10 to the power 1, ये आपका न्यूटन आया. सिमिलरली देखिए F2, वो भी सेम ही वैल्यूज लेंगे, तो इट विल ऑल्सो बी 36/25 into 10 न्यूटन. So now resultant force will be F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 60. तो चलिए निकालते हैं. देखिए F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर तो सेम है, तो इट इज ट्वाइस ऑफ दिस 36/25 into 10 का स्क्वायर प्लस
दिस इज 2 F1 F2, ना F1 F2 इज सेम, सो अगेन ये हो गया 2 36/25 इंटू 10 का स्क्वायर एंड cos 60 इज हाफ, तो ये कट गया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया देखिए, दोनों में से 36/25 स्क्वायर कॉमन है, ये तो बाहर चला जाएगा। सो लेट्स टेक दिस, तो यहां से एक 36/25 इंटू 10 बाहर आएगा और यहां बचा दैट इज 2 + 1, सो इट इज कमिंग 360/25 इंटू √3 न्यूटन। ये आपका हो जाएगा नेट फोर्स, ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स। क्लियर? चलिए आगे सम देखते हैं। तो यहां पे ये बता रहा है कि देयर आर 2 बैलून्स, ये एक बैलून है और ये एक बैलून है, बैलून ए and balloon B, they are tied to 2 threads और उसमें से एक वेट लटक रहा है that is 5 grams, 5 grams। So now the question they have given, that is कैलकुलेट द चार्ज, तो इसका चार्ज भी इसका Q, इसका चार्ज भी Q। ओके, सो लेट अस टेक दिस एज L, ये आपका होगा थीटा, ये भी थीटा। सो इफ दिस इज, लेट दिस बी A, लेट दिस बी A, ठीक है। सो नाउ वॉच वन थिंग, दैट इज इसमें फोर्सेस क्या क्या काम करेंगे। टेंशन, तो इधर फोर्स काम करेगा आपका दैट इज T sin थीटा, T sin थीटा, और इधर T cos थीटा, और इसके लिए भी T cos थीटा। सो 2T cos थीटा इधर काम करेगा। नाउ इफ आई रिजॉल्व 2T cos theta is actually balancing mg and T sin theta is actually the force of repulsion, 4 pi epsilon O Q square by A square, correct? So let's see from here, if I divide this T sin theta by 2T cos theta, which is 1/4 pi epsilon O Q square by A square by mg, T कट जाएगा, that means it will be tan theta by 2, and it will be Q square by 4 pi epsilon O A square mg. So now question they are asking is what is Q square? So देखिए tan theta पहले निकाल लेते हैं। tan theta is base by हाइपोटेन्यूज पता है और बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। सो व्हाट इज द बेस? बेस विल बी रूट ओवर L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, है ना। तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय द बेस विच इज A बाई रूट ओवर L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो यहां पुट कर देते हैं। Q स्क्वायर विल बी 4 pi epsilon O
ए स्क्वायर एम जी tan थीटा बाई 2, फोर पाई एप्सिलॉन ओ ए स्क्वायर एम जी tan थीटा इज ए बाई रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका क्यू स्क्वायर हो गया। तो व्हाट विल बी क्यू? व्हाट विल बी क्यू? क्यू विल बी, बस इसका रूट कर देते हैं, दिस विल बी द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सम को देखते हैं और क्या है। तो देख लेते हैं क्या है। टू स्फीयर्स नेक्स्ट सम देख लेते हैं एक बार, दैट इज, चलिए हियर दैट इज इन टू स्फीयर्स ऑफ मास m, ठीक है। तो दिस इज द फिगर, और दोनों में चार्ज है Q। and the angle between them is theta और length L। तो दिस इज द फिगर। अब यहां पे अगर हम देखें, सो देयर इज अ टेंशन T, दिस इज T cos theta and this is T sin theta। तो यहां भी टेंशन T cos theta and T sin theta। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहां पे T cos theta is balancing mg and ये जो फोर्स T sin theta है, that is the repulsive force between the two charges, 1 by 4 pi epsilon o q square by, तो देखिए ये जो पार्ट है, आपको दिखाऊं, this part is L sin theta। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2L sin theta होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से देखिए, यहां पे T को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, T विल बी mg बाई cos थीटा। तो यहाँ पे T को रिप्लेस कर रहे हैं, T विल बी mg बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा 1 by 4 pi epsilon o, it is q square by 4L square sin square थीटा। ठीक है, तो ना लेट्स सी, तो ये क्या हो गया? ये आपका बन गया mg tan थीटा 1 by 4 pi epsilon o q square by
4l² साइन स्क्वायर थीटा, और हमको क्यू स्क्वायर निकालना है, तो क्यू स्क्वायर विल बी 4ml², ठीक है। दिस इज एप्सिलॉन ओ, दिस इज 4, याद रखिए दिस इज 4, ओके। सो 4ml² साइन स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन यहां से आया इनटू g। सो दिस इज द चार्ज विच द टू स्फीयर्स शुड बी हैविंग, ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो प्रूव्ड। नेक्स्ट, 2 point charges, this and this q1 and q2 are located at 351 and 132 मीटर। तो देखिए यहां पे मैं डिस्टेंस एक पॉइंट ए ले लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 3i 5j प्लस k, और b इसको मैं यहां देता हूं, दिस इज a and b is having coordinates I plus 3j plus 2k। अब यहां पे एक चार्ज है विच इज 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, और यहां पे एक चार्ज है विच इज 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, फाइंड F12 and F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऑल्सो फाइंड देयर मैग्नीट्यूड्स। तो ठीक है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं, ए बी का डिस्टेंस निकालूं तो इट विल बी 3 - 1 I प्लस 5 - j प्लस 1 - 2 k, which is 2i plus 2j minus k। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, इट विल बी √2² plus 2² plus, which is coming 4 plus 4 plus 1, which is coming 9, which is coming 3। तो अब अगर मैं फोर्स निकालूं F12 और F21, तो क्या होगा, देखिए फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन O Q1 Q2 बाई ए बी का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्जेस क्या क्या है, 3 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6 बाई ए बी का स्क्वायर कितना है, 3। सो एफ कितना निकल रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 15 इंटू 10⁻⁻12 बाई 9, ये कटा, विच इज 15 इंटू 10⁻⁻⁷
-3 न्यूटन। ये आपका फोर्स हो जाएगा ड्यू टू द चार्जेस, ठीक है, ये आपका फोर्स हो जाएगा ड्यू टू द 2 चार्जेस। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू कि आप यहाँ पे देखिए कि कूलम्स लॉ में क्या था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है और उन फोर्स को लेके हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग हियर। उन फोर्स को लेके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कूलम्स फर्स्ट लॉ, जो कूलम्स लॉ के ऊपर जो चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये चैप्टर 1 है। तो इस चैप्टर 1 में हम लोग ने आज क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा हमने, और इस कूलम्स लॉ के ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उससे पहले आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखें, बार बार देखें, बिकॉज इट इज़ कवरिंग अप फुल कूलम्स लॉ और उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी इसमें कवर्ड अप हैं। तो इस न्यूमेरिकल्स पार्ट्स को आप अच्छे से देखें। थ्योरी पूरा मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट आई विल ब्रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर है वो आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो ऑफ दैट एंड होप इट विल बी वेरी सून। तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, सी द वीडियो, शेयर करिए इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर द वीडियो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, राइट? सो टिल देन it's goodbye to all of you and hope I will be uploading the next video very soon. Till then we'll meet again. Okay, goodbye from my side and please keep watching my channel. It's Parijat Sir Classes. Thank you so much.